مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی ابھی نئے ہیں، ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک انداز میں دیکھیں اور سنیں تو پھر جڑ جائیے اس چینل سے. سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اور خبریں آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے. جی ہاں ناظرین، ہم وہ دکھاتے ہیں جو عام طور سے دوسرے چھپاتے ہیں. اور میں اپیل کرتا ہوں دوستو ہر روز کہ یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے چینلوں کو آپ اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں. اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ دینا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے، 9923223361. پلیز آپ، اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے آپ مدد ضرور کریں. چلیے آئیے ناظرین، اتر پردیش کی سب سے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اتر پردیش میں لو جہاد کے قانون، جو ایک غیر ضروری قانون ہے اور سنویدھان کے خلاف قانون ہے، بلکہ اس کے خلاف اب ایس پی نے بھی مورچہ کھول دیا ہے اور پورا ملک تھو تھو کر رہا ہے، مگر اب ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی مدعوں میں الجھائے رکھنا ہے. تو یو پی میں اتر پردیش میں لو جہاد کا قانون منظور ہو گیا اور اس کا پہلا مقدمہ بھی درج ہو گیا. بریلی کی ایک مسلم فیملی پر ہندو لڑکی کے پتا نے، ہندو لڑکی کے باپ نے زور زبردستی کے ذریعے تبدیلی مذہب اور اغوا کی دھمکیوں کا الزام لگایا. دفعہ 504 دفعہ 506 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل کے سگنیچر کے بعد گزشتہ کل نافذ ہونے والے لو جہاد کے نئے قانون کے بعد پہلا مرتبہ پہلا معاملہ بریلی ضلع کے دیوریان تھانے میں درج کیا گیا. پریشان کن فریق کا الزام ہے کہ دوسرے مذہب کا نوجوان مذہب تبدیلی کرنے کا دباؤ بنا کر شادی کرنا چاہتا ہے. الزام ہے کہ اویس لڑکی کے والد اور اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے. متاثرہ طالبہ کے والد کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ان الزامات کی تحقیق شروع کر دی ہے. اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہندو لڑکی مسلمان لڑکے سے پیار کرے اور پھر اگر وہ شادی کر لے تو یہ لو جہاد ہوگا، لیکن اگر کوئی بھگوا آتنکی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ انجام دے مسلم لڑکی کے ساتھ تو اسے کون سا، کیا اسے بھگوا آتنکواد نام دیا جائے گا؟ اس پر چرچا جنتا میں عام ہے. ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، ایک ہلڑ باز اینکر ہے، اینکر بھی نہیں بالکل جس کے انداز سے بھی جہالت اور ٹپوری پن ٹپکتا ہے، جس کا نام ہے ارنب گوسوامی. ارنب گوسوامی کتنا چہیتا ہے حکومت کا اور کیسے بچایا گیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فی الحال خبریں آ رہی ہے انل دیشمکھ جو ہمارے ریاست مہاراشٹر کے وزیر داخلہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ارنب کے خلاف سخت چارج شیٹ داخل کی جائے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مقصد نائک فیملی کو، یعنی جس فیملی میں ارنب کی وجہ سے آتما ہتیا اور خودکشی ہوئی ہے، اس فیملی کو ہمارا مقصد انصاف دلانا ہے. ریاستی وزیر داخلہ دیشمکھ نے گزشتہ کل جہانی نائک اور ان کے اہل خانہ کو خودکشی کے معاملے میں ملزم ارنب گوسوامی اور اس کے ماتحت ملزمین کے خلاف سخت ترین چارج شیٹ داخل کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی اس بات کا عزم کیا کہ ریاستی سرکار نائک فیملی کو ہر قیمت پر وہ تمام مراعات فراہم کر کے انصاف دلائے گی جسے سابقہ بی جے پی سرکار نے غلط طریقے سے بند کر دیا تھا. یعنی انل دیشمکھ جی کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ پچھلی بھاجپا کی سرکار نے ارنب کے اس
जुर्म के फाइल को बंद कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार नाइक फैमिली को इंसाफ दिलाएगी और अर्नब के खिलाफ सख्त चार्जशीट दाखिल करेगी। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है किसानों को लेकर। जी हाँ, किसानों के साथ जो आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है वो तो सब आपने देखा है, लेकिन किसान भी किसी भी तरीके से उनके हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि दलाल चैनल गोदी मीडिया को किसान भगा भी रहे। गुज़िश्ता कल 30 सेकंड की जो वीडियो वायरल हुई है कि किस तरह गोदी मीडिया कहकर बड़े बड़े चैनलों को किसान भगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब 2.5 महीने से हम पंजाब में लड़ रहे थे उस वक्त तुम कहाँ थे दलालो। तो खैर, किसानों को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। इस वक्त राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा करके अडानी और अंबानी की आमदनी बढ़ाई गई है। वहीं पर मायावती ने भी अब मैदान में कूद कर ऐलान कर दिया है कि मायावती ने कहा है कि मरकजी हुकूमत यानी भाजपा सरकार जो कृषि कानून है, ज़री कानून है, इस पर नजर सानी जरूर करे। वहीं पर खबरें आ रही है कि अब खुफिया एजेंसियों के जरिए बातचीत की कोशिश की जा रही है। किसान रहनुमाओं ने इसकी मजम्मत की, निंदा की। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि किसानों की तहरीक अब रुकने वाली नहीं, बल्कि ये भी खबरें आ रही है कि 1 दिसंबर से तमाम रियासतों में किसानों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। सत्येंद्र जैन जो वज़ीर सेहत है, उन्होंने भी कहा है हुकूमत से कि बगैर शर्त रखे बातचीत करे मरकजी सरकार, मुजाहिरीन जहां बैठना चाहें उन्हें बैठने दे। वहीं पर यूँ समझिए कि मोदी सरकार, मोदी जी का जो झूठ बोलने का जो अंदाज़ है, स्टाइल है, अल्लाह ने उनको बख्शा है और उनके जैसा झूठ बोलने की सलाहियत किसी में है भी नहीं। तो मोदी सरकार फिर कह रही है कि हमने जो नया कानून लाया है इसमें किसानों का भला ही भला है। अब किसानों का भला है जनाब, तो फिर किसान डंडे और गोलियां खाकर भी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आखिर तुम्हारी बात उनके समझ में क्यों नहीं आती? मोदी जी के झूठ बोलने का स्टाइल आप समझ सकते हैं, कितना उनको कॉन्फिडेंस होता है झूठ बोलने में। वो अभी भी कह रहे हैं कि बरसों पुरानी जो किसानों की मांगे थी भाइयों बहनों, हमने उसको पूरी किया है। तो जब किसानों की मांगे पूरी हुई तो ये किसान क्यों गोलियां खाकर भी आपके खिलाफ मैदान में उतरे हैं? नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त फिर आ रही है। हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद में अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मिनी पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। भाजपा के तमाम नेता, अमित शाह से लेकर योगी से लेकर तमाम के तमाम हैदराबाद पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर हैदराबाद के इलेक्शन को इतनी अहमियत बीजेपी क्यों दे रही है। खैर, वहां जाकर जब ये गए हैं तो सिवाय जहर उगलने के जो अंदर रहेगा वही बाहर आएगा। तो जहर उगलने के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको मैंने कल कहा था कि भाई टॉयलेट के भांडे में से क्या निकलेगा? टॉयलेट ही निकलेगी, गंदगी ही निकलेगी। तो वहाँ पर भी नफरतों का माहौल बन रहा है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने, योगी आदित्यनाथ ने जो कल कहा था कि हैदराबाद का भी नाम बदल देंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने अंदाज में योगी आदित्यनाथ पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ, तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदल सकता। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती और कई लीडरान जिनको यूं समझिए कि नजरबंद महीनों से किया गया था और फिर वापस नजरबंद की तरह ही उन्हें रखा जा रहा है। तो अब महबूबा मुफ्ती का इस वक्त बड़ा बयान आया है कि मेरी पार्टी पर, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरी पार्टी पर पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। और ये भी कहा कि दफा 370 हटने से हुकूमत ये कहती है कि हमने 370 को हटाया तो कश्मीर के तमाम प्रॉब्लम्स हल हो गए। तो फिर ये 9 लाख फौजी यहाँ क्या कर रहे हैं? जब प्रॉब्लम हल हो गए तो कश्मीरी तो बड़े खुशी में रहेंगे। ये 9 लाख फौजियों को यहाँ रहने की ज़रूरत क्या है? जब कश्मीरी खुश है तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकता? क्या इसलिए कि वो एक मुस्लिम मुल्क है? पीडीपी रहनुमा ने ये बड़ा सवाल मोदी सरकार पर उठाया है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर ये भी आ रही है कि कोरोना के ताल्लुक से मोदी सरकार ने, जाहिर बात है आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता कल उनके मन की बात भी हुई है। उनके मन की बात कब पूरी होगी ये थोड़ा समझना मुश्किल है। मन की बात उनके चलती रहती है, दूसरों के मन की सुनने को तैयार है ही नहीं। तो मन की बात में उन्होंने बहुत सारी बातें की और गुज़िश्ता कल ये भी उन्होंने कहा कि कोरोना की तरफ लापरवाही अब भी बहुत ख़तरनाक है। यानी जो लापरवाही बरती जा रही है इससे कोरोना और ख़तरनाक अंदाज में फैल सकता है। इस तरह मोदी जी ने कहा तो लोगों ने फ़ौरन ट्वीट करना शुरू कर दिया कि मोदी जी, जब बिहार का इलेक्शन था और हज़ारों लाखों लोग आपकी रैली में भी, आप भी वहाँ पर शरीक हो रहे थे, तो तब कोरोना कहाँ चलाया गया था? क्या
कोरोना इतना होशियार है कि जब इलेक्शन आता है तो वो अपने बिल में बैठ जाता है, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो गया तो फिर वो वापस बाहर घूमने के लिए आ जाता है। तो आपने इलेक्शन जहाँ जहाँ है कोरोना वहाँ नहीं फैल रहा है, और जहाँ इलेक्शन ख़त्म तो आप फिर कोरोना वापस लाना शुरू कर देते हैं। तो अब जनता ये जानना चाहती है कि कोरोना के पीछे आखिर बड़ा गेम क्या है। नजर ऐसी दूसरी बड़ी खबर इस वक्त हेडलाइंस बनी हुई है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बात करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में लोगों को सकाफत मुहैया कर रही है एक जज्बाती तवानाई। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने कोविड-19 जैसे महामारी के दौर से निपटने में सकाफत के, कल्चरल के प्रोग्राम के किरदार को बहुत अहम बताया है, और कहा है कि लोगों तक तकनीक के जरिए से जज्बाती तवानाई पहुंचाने के लिए भारत की सकाफती विरसे को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मिस्टर मोदी ने मन की बात में वाराणसी के एक मंदिर से 100 साल पहले चोरी हुई देवी की कदीम मूर्ति कनाडा से वापस आने पर खुशी का इजहार किया और ये बात कही। उन्होंने कहा कि आफत में सकाफत बड़े काम आती है, इससे निपटने में अहम किरदार अदा करती है। तकनीक के ज़रिए से भी सकाफत एक जज्बाती तवानाई की तरह काम करती है। वज़ीर आज़म ने उस मूर्ति को लौटाने के लिए कनाडा की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि काशी से बहुत ही ख़ास ताल्लुक़ है, अब इनकी मूर्ति का वापस आना हम सभी के लिए खुशी की बात है। नाज़रीन, हैदराबाद इलेक्शन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, लेकिन मिनी पार्लियामेंट के इलेक्शन की तरह नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया कि पूरी बीजेपी की टीम वहां पर अमित शाह समेत पहुंच गई है, योगी आदित्यनाथ वगैरह तमाम के तमाम पहुंच गए हैं। खैर, अब हैदराबाद की फजाओं में भी जहर घुल चुका है और वहां पर भी नफरतों की यलगार की जा रही है बीजेपी की तरफ से। यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रोड और नालियों के बजाय बात हो रही है डायरेक्ट इसको खत्म करने की और उसको खत्म करने की और निजाम की कल्चर को खत्म करने की। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने घटिया ज़हनियत के साथ में बीजेपी हैदराबाद के अमन वाले माहौल को खराब करने की कोशिशें कर रही है। हैदराबाद के इलेक्शन में कहा जा रहा है कि फ़िरका परस्तों की यलगार है बीजेपी के नामी गिरामी लीडरों के दौरे के बावजूद, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि टीआरएसटी की पोजीशन वहां पर बेहतर है। खैर, वहां पर अमित शाह का बयान आया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अमित शाह ने यह कहा है कि हैदराबाद के ताल्लुक से कि निज़ाम तहजीब को ख़त्म करके हैदराबाद को हम छोटा हिंदुस्तान बनाएंगे। यानी आप समझे कि जिस निज़ाम ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अरबों रुपए की उस वक्त दौलत दी थी, तो वो अंग्रेज़ों को भगाने वालों के निज़ाम को ख़त्म करके, उनकी तहजीब, उनके कल्चर को ख़त्म करके अब ये कौन सा हिंदुस्तान बनाएंगे, आप समझ सकते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह का हैदराबाद में इंतखाबी तशरीह के दौरान रोड शो के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें अमित शाह ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस तरक्की की राह में रोड़ा बन रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी को वोट दें ताकि हैदराबाद में भी बीजेपी का मेयर बन सके और हैदराबाद का भी वही हाल हो सके जो पूरे हिंदुस्तान का, भारत का हो रहा है। अमित शाह ने हैदराबाद से लोगों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किए जाने के लिए शुक्रिया अदा किया। अब कितनी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और करने वाले कौन थे वो आप सब समझ सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं हैदराबाद के लोगों का उनकी ज़बरदस्त हिमायत के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। खैर, पता चलेगा कि मशीनें वहाँ क्या गुल खिलाती है, लेकिन खबरें आ रही है कि मशीनों को वहाँ पर कोई रोल नहीं है, इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पर प्रचार के लिए झोंक दिया है, क्योंकि हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन मशीनों पर नहीं बैलेट पेपर पर होगा। नाज़रीन, गोवा से बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि गोवा में सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए कोविड-19 की जो जांच ज़रूरी थी और मनफी रिपोर्ट लाना ज़रूरी थी, नेगेटिव रिपोर्ट लाना ज़रूरी थी, अब ये शर्त ख़त्म कर दी गई। रियासत गोवा में घरेलू टूरिज़्म को, घरेलू सियाहत को 100% बहाल कर दिया गया है। वज़ीर आला सीएम गोवा ने यह ऐलान किया है। वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा आने वाले टूरिस्ट के लिए कोविड-19 की जाँच और मनफी रिपोर्ट लाने की जो शर्त थी वो अब ख़त्म कर दी गई है। मिस्टर सावंत ने यूएनआई से एक इंटरव्यू में कहा कि गोवा में कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं है, सयाहों के आने पर सिर्फ थर्मल चेकिंग की जाएगी। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और मीडिया सेल के जिम्मेदार मौलाना उमरान रहमानी की इस वक्त मैं खबर मेरी निगाहों के सामने देख रहा हूँ। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 87 यानी 87 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादी रचाई है। मौलाना उमरान ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को
موبائل اور اسکوٹی سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ انصار جماعت خانے کی مشاورتی میٹنگ سے مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ماں باپ سرپرست تمام لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو خاص طور سے موبائل جیسی خطرناک لعنت سے بچائیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ اس وقت ملک میں لو جہاد کا مدعا چل رہا ہے کہ ہندو لڑکی اگر کسی مسلمان لڑکے سے اگر نکاح رچاتی ہے تو پھر وہ لو جہاد کا معاملہ ہوگا، لیکن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں کہ 87 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے۔ تب آپ بتائیں کہ اس کو کون سا جہاد کہا جائے گا؟ اسے بھگوا جہاد کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا؟ لیکن خیر اس خبر کو بتانے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیڈران، سربراہان، علماء، سیاسی ملی ذمہ داران خواب غفلت سے بیدار ہوں، کیونکہ اس وقت بہت ہی غلط ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ اور تمام لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کی ہر طرح سے نگرانی رکھیں اور ان کی صحیح تربیت کا انتظام کریں۔